Hello friends, how are you all? Welcome to online classes of Swastik Education. In last class we had discussed about acids. Let's move on to the next topic that is called as base. What is base? आखिर ये है क्या? एसिड हमने पढ़ लिया कि क्या था कि ऐसी चीज़ें that are sour in taste, they are corrosive in nature, they are present in plants, animals as well as we get it from industries also. Now what is a base? बेस आखिर है क्या? बेस हमारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे डेली रूटीन में हम लोग को देखने को मिलती है. आई जस्ट टेल यू द एग्जांपल्स एंड यू मस्ट हैव सीन दीज थिंग एट योर होम. व्हाट आर दे? डिटर्जेंट, बेकिंग सोडा, ड्राई ड्रेन क्लीनर, सोप्स, एंटासिड्स, ये सारी चीजें आपके घर पे पाई जाती हैं, राइट? दे आर बेस. अब इनको ही देख के इनके कुछ नेचर आप यू कैन गेस अबाउट देयर नेचर. दैट इज दे आर व्हाट? What is the taste? They are bitter in taste. बिटर होते हैं. टच करने पे ऑब्वियसली ये सोप्स की बात हो रही है. टाइड क्या है? साबुन है. फिर हम लोग बात करें हैंड वॉशेस. आजकल हम लोग को कहा जा रहा है द लीडिंग सीजन कि हाथ बार बार धोएं. किससे? सोप. What is a soap? That is again a base. So we say that its nature is a little bit soapy. We will be discussing more things about base in this session. So let's start with the topic that is called as base. So what is a base? Base में आखिर ऐसा क्या है कि उसको हम लोग कहते हैं कि that is a base. क्या आखिर इसमें common है? That is OH ion, that is hydroxyl ion. Base have OH ions. The substance that is those substances that releases hydroxy ion, OH ion, they are considered as bases. उनको हम लोग क्या consider करते हैं? They are considered as bases. As acids, bases are of two types. Again, they are also of two types. So, as I said, that it contains or it releases hydroxy ion, OH ion. That means what? They are also categorized on the basis of this hydroxy OH ion into two categories, that is strong bases or weak bases. दो तरह के बेस हैं. ये जनरली हमें कोई खास ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो ये हम लोग आसानी से हम लोग यूज़ भी करते हैं रेगुलर लाइफ में. ये कैटेगराइज, अब इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा है? स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस. दो कैटेगरी हैं. अब जैसे हमने एसिड में पढ़ा था, क्या था? स्ट्रॉन्ग मीन्स व्हाट? दे रिलीज कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन कंप्लीटली रिलीज करते थे. वीक क्या थे? हाइड्रोजन आयन पार्शियल रिलीज करते. सिमिलर इज विद द बेस, बट only thing that changes it, ions. In case of acid, hydrogen ion was released, and in case of bases, OH ion is released, that is hydroxy ion is released. So when we talk about a strong base, what is a strong base? That releases OH ions completely. जब ये water के साथ dissociate होता है तो ये OH आयन पूरी तरह से रिलीज करता है, मैक्सिमम रिलीज करता है, मैक्सिमम अमाउंट, और वी कैन से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ maximum OH ion is released. Okay, so whenever in a solution maximum amount of hydroxyl ion, that is OH ion, is released, it is said to be a strong base. Whereas when we are talking about a weak base, what is a weak base? Releases OH ions partially. अब इसमें क्या होता है? OH ion जो है वो पार्शियली रिलीज होता है, आधा अधूरा रिलीज होता है, पूरी तरह से रिलीज नहीं होता है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली रिलीज करेगा हाइड्रोक्सिल आयरन, वीक बेस partially release karega hydroxyl ion. Okay, so these are the, let's talk about some examples of weak bases and strong bases. When we are talking about weak base, we have ammonium hydroxide NH4OH and potassium hydroxide KOH is the strong base. Okay, so these are what? Strong as well as weak bases. Okay, now let's talk about the next topic.
आखिर चलो ये तो पता चल गया कि वीक बेसिस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है। अब बेसिस भी ना उसमें भी एक चीज आती है कि कुछ बेसिस जो होते हैं सम आर सोल्यूबल इन नेचर विथ वाटर, whereas some bases are insoluble in water. They do not dissolve with water, they do not completely dissolve with water. So these are the two categories. Those bases that do not dissolve with water, उनको एक ही नाम दिया है, that is base. They are bases, but there is a special name to the bases that are mixable with water, or you can say that dissolves with water. They are called as alkali. उनको हम लोग क्या नाम देते हैं? अल्कली. किसे अल्कली कहते हैं? Those bases that are water soluble. So we say that what is alkali? That is water soluble base. सारे के सारे बेस वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं. कुछ बेसेस ऐसे होते हैं जो वाटर में मिक्स नहीं हो पाते हैं, बट जो मिक्स हो जाते हैं दे आर कॉल्ड एज अल्कलीज. उनको नाम दिया जाता है अल्कली. दैट इज एक्वस बेस, दैट इज वाटर सोल्यूबल बेसेस आर कॉल्ड एज अल्कलीज. वाटर सोल्यूबल बेस को हम लोग कहते हैं अल्कली. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस. बेस की प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग. फर्स्ट प्रॉपर्टी, एज यू नो, द टेस्ट इज बिटर. बेस आर बिटर इन टेस्ट. जब उसको टेस्ट किया जाता है तो हल्का सा कड़वाहट सा आता है, दैट इज देयर टेस्ट इज बिटर. दे आर बिटर इन टेस्ट. सेकेंड, रिलीज OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं. देन थर्ड, दे आर सोपी टू टच. हल्का सा चिपचिपाहट सा, चिपचिपापन होता है इसको जब टच किया जाता है, जैसे सोप को टच कर रहे हो, हल्का सा चिपचिपा सा होता है. दैट इज द सोपी नेचर ऑफ द बेसिस. सो दे आर सोपी टू टच. Then fourth, these also conduct electricity. These also conduct electricity. See, students, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करेगा? आखिर दोनों ही हमने पढ़ लिया कि एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, बेसिस भी कंडक्ट कर रहे हैं. व्हाई? व्हाट इज द रीजन दे आर कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी? सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर कंडक्टिंग द एसिड इलेक्ट्रिसिटी, one thing is compulsory, that is dissociation of ions. ions का dissociation होना, splitting होना, तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है. सो ऑलवेज रिमेंबर क्या है हमारा, ये कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्यों कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? बिकॉज acid and bases both are dissociating ions, both are releasing the ions, and that's why they are conducting electricity. So here also we can say that bases conduct electricity. So next property, reaction with metal. See student, all the metals do not react with bases. सारे metals के साथ bases react नहीं कर पाते हैं, but ये react with some of the metals. कुछ metals के साथ ये react करते हैं, and on reacting with bases, when react with metal, they release hydrogen gas. They release what? They release hydrogen gas. That is, when a base reacts with a metal, they release hydrogen gas with the metal salt also. Then next property, when they react with acid, when acid is reacted with base or base is reacted with acid, vice versa है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें, चाहे हम लोग एसिड को वाटर के बेस के साथ करें या बेस को एसिड के साथ करें, रिजल्ट इज सेम, दैट इज salt and water is formed. That is, when a base reacts with acid, it gives us salt and
water. Next property of base is what? Reaction with non-metal. Reaction with non-metal. When a base reacts with a non-metal, again it is not non-metal but non-metal oxide, it will again give us salt and water. Okay, so these are the properties of the bases. ये है हमारी bases की property. क्या है पहली property हमारी, क्या कह रही है? That is bitter in taste. कड़वाहट सा, हल्की सी कड़वाहट सी होती है जब हम बेस को टच कर, आपके मुंह में कभी गलती से अगर मान लो सर्फ चला गया या सोप हमारे मुंह में चला जाता है, कैसा एकदम कड़वा सा टेस्ट आता है. सो दैट इज द टेस्ट ऑफ द बेस. दे आर बिटर इन टेस्ट. रिलीज OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं ये. सोपी टू टच, इसको टच करने पे सोपी सोपी सा फीलिंग आता है, चिपचिपाहट सा, अपना चिकनापन होता है इनमें. देन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. मतलब अगर हम लोग ये कंडक्टर्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रेवल थ्रू देम. व्हेन रिएक्ट विथ मेटल्स, ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ बेस. सारे के सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन हाँ जो रिएक्ट करते हैं मेटल्स बेस के साथ, दे रिलीज हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. देन when they bases react with acid, जब bases acid के साथ react करते हैं तो वो क्या release करते हैं? Salt and water. They release salt and water. When bases react with non-metal oxide, they release salt and water again. So these are the properties of bases. So this is it with the base. Base आप लोग आपके लाइफ में, आपके डे टू डे लाइफ में देखते ही हैं. जैसे I had given you example. What are the examples? That is डिटर्जेंट. बेकिंग सोडा क्या है? घर पे मम्मी मीठा सोडा यूज करते होंगे, पकौड़ी वगैरह में यूज करते हैं. दैट इज बेकिंग सोडा. देयर इज अ क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज आई हैड सीन इन पेपर्स दैट a base is used to make pakoras, to make pakoras more crispy, or to do household work. Name that base. Which is the base? That is baking soda. Clear? कौन सा बेस है जो यूज करते हम लोग फॉर कुकिंग पर्पस? दैट इज बेकिंग सोडा. फॉर क्लीनिंग पर्पस, सो यू कैन से बेसिस कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? कुकिंग, क्लीनिंग एंड मेनी अदर यूजेस आर देयर. सो डिटर्जेंट एंड सोप्स फॉर क्लीनिंग पर्पस. एंटासिड, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जब ज़्यादा खा लिया या कुछ गलत खा लिया, पेट में थोड़ी जलन या गैस की प्रॉब्लम आ जाती है, इन दैट केस हमें क्या दिया जाता है? एंटासिड्स दिए जाते हैं. व्हाट आर दे? They are bases in nature. They are bases. So this is it with the base. Now let's move on to the next topic. That is universal indicator. अब जब हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि दो चीज़ें हैं हमारे पास, एसिड और बेस, एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, एक हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है, तो इसके बेस पे हमारा एक नया इंडिकेटर हमें पता है. एक नया क्या, एक इंडिकेटर है जो एक ही इंडिकेटर दोनों चीज़ों के बारे में बता देता है. क्या वो एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है. It gives us each and every information, and that indicator is termed as universal indicator, and name of this indicator is pH, percentage of hydrogen ion. Okay, so this is the universal indicator. अभी pH क्या है? आखिर pH क्या है? तो pH एक तरह का इंडिकेटर है जो कि हमें सारी इंफॉर्मेशन दे देता है. मतलब अगर हमने if we check it with we test it with some solution, it will give us each and every information. What kind of information? Whether it is a acid or a base. अगर वो acid है तो वो strong है या weak है, base है तो strong है या weak है, या acid base दोनों ही नहीं है. These all information we gather it from what? From one indicator, that is pH. pH जो है आपको, ये होता है हमारा pH. This is pH. Now this is nothing else, just a single strip of paper. pH क्या है? एक पेपर स्ट्रिप है. ये आप देख रहे हैं, ये 1 2 3, these are the 4 strips, not single strips, these are the 4 strips.
ये स्ट्रिप्स जो है ना, इसको जब हम लोग डिप करते हैं, व्हेन these strips are dipped with or टेस्टेड with some solution, उसमें क्या होता है, कलर चेंजेस आते हैं, ठीक है, एंड दैट कलर चेंजेस टेल अस whether the solution is acidic or basic or neutral, or whether it is strong acid, weak acid, strong weak, and so on. All the information we gather it from one strip, that is the pH. वो कैसे पता चलेगा हमें हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई ये क्या हो गया, ये कैसे आया. सो व्हाट फ्रॉम कहाँ से हमें पता चलता है, along with this paper, pH paper, we get a strip जिसमें ये 14 कलर्स होते हैं with the numbers. हमारे पास जो स्ट्रिप होती है उसके साथ ये 14 कलर्स का एक चार्ट दिया हुआ होता है. We get a chart having 14 different colors with different numbers. हर एक के साथ देखो, इसके साथ 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on up to 14 नंबर दिए हुए हैं. So these numbers tell us whether the solution is acidic or basic or neutral and what kind of acid or base. Okay, so all the information we get from this colors. This color changes, that is the informations. How does it change the color? So pH strip जो है हमारा, उस पे होते हैं numbers that contains number from 1 to 14. It is a scale that has numbers from 1 to 14. 1 से लेके 14 नंबर तक दिए होते हैं अलग अलग कलर्स, ठीक है. ये जो 1 to 14 नंबर्स हैं, जो कलर्स हैं, they only tell us the given substance, given material is acidic or basic and all the different informations. Let's talk about the pH value, which is 1, or you can say less than 7. pH value जिसकी 7 से कम होती है, we say that it is a acid, or you can say it is from 1 to 6, that is acid. Okay, pH value more than 7, that is 8 to 14, it is base. मतलब pH वैल्यू जिसकी 7 से कम हुई दैट इज एसिड, 7 से ज्यादा हुई दैट इज बेस. बच क्या गया, बच गया हमारे पास 7. ये जो 7 है वो किसका pH होता है, दैट इज न्यूट्रल सॉल्ट. मतलब ऐसा सॉल्ट जो कि ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है. सो पहली इंफॉर्मेशन तो हमें यहाँ से कलेक्ट हो जाती है. दैट मीन्स कि अगर मेरे पास, मैंने एक टेस्ट किया और मेरा कलर आ गया येलो कलर, अब येलो में भी हम चेक करेंगे डार्क येलो है, लाइट येलो है. लाइट येलो आ गया, नंबर 6 हो गया, एंड नंबर 6 यानी कि क्या हो गया, नंबर 6 इज फॉर एसिड. ओके, सिमिलरली अगर मेरा पेपर स्ट्रिप हो गया पर्पल कलर में आ गया, सो पर्पल कलर किस चीज का है, नंबर कौन सा है, 12 है. 12 नंबर इज फॉर bases. So likewise we get the information about the acid and the base. Second मैंने बोला था कि इससे हमें एक और information मिलती है कि whether the given acid or a base is strong or weak. हमें ये information भी मिलती है यहाँ से कि जो हमारा acid हमें मिला था वो strong है या weak है. So वो कैसे मिला? This is clear? Less than 7 means acid, more than 7 means base, and exactly 7 that is neutral. Just take see the color for the 7. This is 7. That is lemonish, हल्का सा डार्क था, थोड़ा सा डार्क और येलो और के बीच में. That is what? That is the salt color for the neutral salt. नाउ मैंने आपको बोला कि हमें इससे एक और इन्फॉर्मेशन मिलती है, वेदर द गिवन सॉल्यूशन, गिवन सॉल्ट इज वीक और अ स्ट्रॉन्ग वन. वीकर है या स्ट्रॉन्गर है. ऑलवेज रिमेंबर दैट इज फ्रॉम 0 to 3 दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. 4 to 6 that will be weak acid.
0 to 3. Then 8 to 11. 8 to 11, weak base. And 12 to 14, that is strong base. So likewise, we'll get to know whether the given salt is strong or weak. यहाँ से हमें information मिल जाती है कि ये strong होगा या weak होगा. वीक होगा, अगर एसिड है वीक होगा तो उसका नंबर 4 to 6 के बीच में आएगा. बेस होगा तो 8 to 11 के बीच में आएगा. अगर वही हमने कहा कि ये स्ट्रॉन्ग है और बेस है तो आ जाएगा हमारा 12 to 14 के बीच में. So here, from here you can conclude that the acidity or yeah, you can say acidic nature decreases with increase in pH. pH बढ़ने के साथ साथ जो हमारा एसिडिक प्रॉपर्टी है, एसिडिक नेचर है, वो डिक्रीज होता है. एंड बेसिसिटी, that is basic nature, increases with increase in pH. Means if the pH is getting increased, the basic property will be always also increasing. अब क्वेश्चन आता है कि ये किस चीज़ से पता चलता है, ये pH वैल्यू चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है कि ये अलग अलग कलर शो करता है. तो रीज़न इज़ हाइड्रोजन आयन. कितना हाइड्रोजन आयन उसमें प्रेजेंट है, दैट टेल्स अस द pH वैल्यू, उसकी वजह से वो चेंजेस आता है. ठीक है. सो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि pH है क्या, तो pH हमें हाइड्रोजन की परसेंटेज बताता है, कितना हाइड्रोजन आयन उसमें डिसोसिएशन हो रहा है. ठीक है. तो देयर इज अ क्वेश्चन that whether hydrogen ion, what is the nature, or you can say whether hydrogen ion is present in base and what is the effect of hydrogen ion. So answer will be what? Hydrogen ion is present in both acid or and as well as base. Acid और base या हमारा salt, तीनों में ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. बस कंडीशंस ये होती है कि एसिड के केस में हाइड्रोजन आयन का जो अमाउंट होता है दैट इज more as compared to salt and bases, whereas in case of base जो हाइड्रोजन आयन है उसका अमाउंट कम होता है as compared to OH आयन. इसलिए वहाँ पे हमने OH आयन की बात की, हाइड्रोजन आयन की बात नहीं की है बेस के केस में. सो दैट इज वाई ये जो pH है ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के तौर पे काम करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन के बेस पे काम कर रहा है. इट इज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज्ड. दैट्स वाई दिस इज गिविंग अस so much of variety of results कि हमें यहाँ से ये भी पता चल गया कि एसिड था या बेस था या स्ट्रॉन्ग था या वीक था. we get all the knowledge from one indicator and that's why this is called as universal indicator. So question is, what does pH tell us? pH tells us the strength of the acid as well as बेस. ये हमें स्ट्रेंथ भी बताता है, ये हमें उसके बाद नेचर भी बता देता है whether it is acidic or basic. So this is it with the pH. I'm just repeating it. What is a pH? pH is the universal indicator which tells us about the all the informations related to the given salt. दिए हुए सॉल्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन के बारे में हमें pH पेपर बताता है. दैट इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर दैट कंसिस्ट ऑफ 14 नंबर्स, दैट इज रेंजेस फ्रॉम 1 to 14.
1 to 14 रेंज होता है, सिंगल स्ट्रिप है, इट इज अ सिंगल येलो कलर स्ट्रिप और समवेयर इट वाज ऑरेंजिश टाइप कलर. इसको टेस्ट किया जाता है विद द हेल्प विद द सॉल्ट के साथ इसको टेस्ट किया जाता है एंड इट शोज डिफरेंट कलर्स. उसमें क्या होता है, हमें इस सिंगल स्ट्रिप में अलग अलग कलर्स एज द सॉल्यूशन इज, जैसा सॉल्यूशन है जैसा उसका नेचर है, इट विल शो डिफरेंट कलर्स. एक टाइम पे एक ही कलर होगा, ऐसा नहीं है कि एक हमने सॉल्यूशन लिया उसमें 4 कलर्स दिखाएंगे. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. इट विल शो ओनली 1 कलर. लाइक इफ आई एम टेस्टिंग इट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो वो हमें कलर कौन सा शो करेगा, वो हमें कलर शो करेगा ये ऑरेंज टाइप का कलर, ऑरेंज वाला जो हमारे स्टार्टिंग में दिख रहा है. बिकॉज वाई, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. Okay, similarly if I test it with NaOH, sodium hydroxide, it will give us a color which is little bit greenish in color, greenish in nature में होगा, हल्का सा green वाला color. Why? Because it is weak base. Likewise अगर हम किसी भी एसिड के साथ किसी भी बेस के साथ चेक करेंगे, we will get these 14 different colors. So from here we conclude what? For acid the pH has to be from 1 to 6 और 0 to 6 हम लोग कहते हैं, कई बार वो कलर और थोड़ा सा लाइटिश हो जाता है, that's why it is 0 to 6. For base it is 8 to 14. One more question arises that ma'am, what happens if the pH is 6.8 or 6.4 or you can say 7.2, ऐसा pH आ जाए तो क्या? क्योंकि ये कब आएगा, ये हमारे टेस्टिंग से नहीं पॉसिबल है. व्हेन वी चेक इट विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट दीज वैल्यूज़, क्योंकि वहाँ पे तो हमारे होल नंबर्स में दिए हुए हैं. दिस इज़ ओनली पॉसिबल जब हम लोग केमिकली इसके फॉर्मूला के यूज़ करके इसको सॉल्व करते हैं. इफ़ you get a question like this, whether if the pH is this and this, what will be the type of solution, तो वहाँ पर हो जाता है कि ये जो सॉल्यूशन हमारे होते हैं, सॉल्ट हमारे होते हैं अलग अलग टाइप के, ये उसके ऊपर होता है कि सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. एंड दैट गिव्स अस, अगर वो एसिडिक होगा तो हमें वो ये वाला नंबर में आएगा, अगर वो बेसिक हो जाएगा देन इट विल बी मोर देन 7 और 8 के बीच में उसकी pH वैल्यू होगी. अगर न्यूट्रल होगा तो pH वैल्यू विल बी 7. सो दैट्स वाई वो जो 7 और 6 और 7 और 7 और 8 के बीच वाला जो pH है वो इंक्लूडेड नहीं हो रहा है यहाँ पर. नेक्स्ट, फ्रॉम 0 to 3 इट विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड, फ्रॉम 4 to 6 इट विल बी वीक एसिड, फ्रॉम 8 to 11 it will be weak base, and from 12 to 14 it will be strong base. Next the question arises, what will happen to the acidity? The acidic nature will decrease as pH is increased. जैसे जैसे pH हमारा increase होगा, acidity acidic nature decrease हो जाएगा. जैसे जैसे हमारा pH increase होगा, basic nature increase हो जाएगा, basicity वहाँ पे increase होती है, acidity कम होती है, basicity बढ़ती है. So this is it with the pH. Okay, so we will continue in the next class. Goodbye, have a good day.